Good morning, class. I hope you're all doing well and taking all of the necessary precautions. And in this particular video, we are going to talk about green economics. What is green economics? So, by the name, you can understand that economics means allocation of resources in times of scarcity. This particular line I've been saying in all of my videos कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है. इकोनॉमिक्स का मतलब होता है ऐसे डिसीजन को लेना जब आपको डिसाइड करना होता है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज को आप किस तरीके से एलोकेट करें सो दैट अल्टीमेटली यू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट. दैट इज़ इकोनॉमिक्स. एंड ग्रीन इकोनॉमिक्स क्या है, नाम से आपको पता चल रहा होगा. इन्वेस्टिंग इन अ मैनर that not only gives you ultimate level of satisfaction, gives you the utility of it, but also is done in a way which is sustainable to the environment, which does not damage the environment for your development. So that is all economics all about. So green economics is a methodology of economics that supports the harmonious interaction between human and nature and attempts to meet the needs of both simultaneously. यानी कि ग्रीन इकोनॉमिक्स वो सारे डिसीजंस के बारे में बात करता है जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट भी अचीव हो पाए और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कंट्रोल हो पाए, इन्वायरमेंट को कम से कम या फिर ना के बराबर डैमेज हो. So green economic theory encompasses a wide range of ideas all dealing with interconnected relationship between people and environment. So basically अगर इसको sum up करना है एक particular line में तो इसको क्या बोला जाएगा? It is about meeting the needs for today without compromising on ability to meet this tomorrow. यानी कि जो प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना है, यानी कि डेवलपमेंट रखना, बट not at the cost of compromising the ability of the environment to meet the needs of the future generation. यानी कि ये जो sustainability का concept है, it is also an intergeneration concept. So ये first idea किसने बताया था कि there is a development can pose a threat to sustainability in the future if the development is not accounted for the environmental effects. ये रिपोर्ट हमें सबसे पहले सजेस्ट किया था ग्रोथ रिपोर्ट 1972, जिसमें बताया गया था कि थ्रेट ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी हम फ्यूचर में देखते हैं अगर डेवलपमेंट को हमने इन्वायरमेंट के साथ मिक्स नहीं किया तो. एंड उसी तरीके से ब्रूटलैंड कमीशन विच इज़ वन ऑफ द फेमस कमीशन, एंड ये ब्रूटलैंड जिन्होंने हेड किया था इस कमीशन को उस टाइम पे 1987 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. एंड दिस वाज द कमीशन विच फर्स्ट गेव दिस आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी बीइंग एन इंटरजनरेशन गोल. इंटरजनरेशन गोल मतलब प्रेजेंट जनरेशन की नीड को सेटिस्फाई करना बट एट द सेम टाइम अपने रिसोर्सेज को बचा के रखना फॉर द फ्यूचर जनरेशन. अब हमें ग्रीन इकोनॉमिक्स से हमारा जो आइडिया है वो ड्राइव करता है सस्टेनेबिलिटी की तरफ. सस्टेनेबिलिटी तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, सोशल, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक. ये क्या बोलता है, हमें अपने सोशल गोल्स को मीट करना है. सोशल गोल्स यानी कि हर सिटीज़न की नीड को सेटिस्फाई करना है, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, उसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको लेने हैं. प्लस हमें अपनी डेवलपमेंटल नीड्स को मीट करना है, यानी कि इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना है. बट द सेम टाइम ये सब अचीव करना है विद इन द लिमिट ऑफ इन्वायरमेंट्स बियरेबिलिटी. इन्वायरमेंट इस लेवल तक बियर कर पाए, उसी लेवल तक हमें अपनी डेवलपमेंट को लेके आना है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच. दैट इज़ whenever you're making a decision with respect to your country, with respect to your any of the project that you're undertaking, please consider three factors. That is, what is going to be the social impact of that project, what is going to be the economic impact of that project, plus at the same time do not ignore the environmental impact of that particular project. So moving on, so there are certain indexes which you must be aware of. For example, green GDP. What is green GDP? Green GDP is basically ranking of the country's GDP on the basis of environmental, taking into consideration the environmental impact factor as well. So India ranks 6th out of 190 countries on the green economy barometer. When we talk about economic performance, environmental performance index, then on the environmental performance index, the India ranks 168 out of 180 countries, which is very less, and which is like too far back, and we really need to bring up policies to achieve this.
Then moving on, if we talk about social progress index, progress index basically measures a country's ability to meet the requirements of its citizens, and on that index India ranks 43 out of 50 nations. So that's like really a worst case scenario. And when we talk about, and then we also have heard about MDGs and SDGs. What's MDGs? MDGs is Millennial Development Goals, which were there to be achieved till 2015, and which were further succeeded by Sustainable Development Goals in 2016. And Millennial Development Goals, basically there were 8 goals of poverty eradication, women participation, healthcare. These are the basic goals. And after that, Sustainable Development Goals, which are currently going on, 17 sustainable developmental goals were introduced, which talked about inclusiveness in terms of education, providing of healthcare facilities, eradication of poverty in all forms. So those were the sustainable development goals, and one of the important sustainable development goal is your focus on the environment. So moving on, Global Green Economy Index. So although India has made major international commitments towards the 2030 Global Development Agenda and the Paris Climate Agreement, it ranks 68 out of 80 countries in terms of Global Green Economy Index. So which is very less for India. Then moving on, so we are in the remaining video, we are going to discuss about certain initiatives at national level and at the state level that India has taken, and amongst many other nations, and certain news articles about it. So starting with Solar Initiative India. So Solar Initiative, when BJP government came to the power in 2014, Mr. Prime Minister Modi ji announced India's inclination towards having a solar initiative, that is making sure that हर एक घर में 24/7 बिजली पहुंच पाए. दैट वाज द गोल ऑफ एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें इंश्योर करना है बाय अ सर्टेन टाइम लिमिट हम हर एक घर में, चाहे वो घर कितना भी रिमोट लोकेशन में सिचुएटेड हो, उस घर तक बिजली पहुंचानी है, 24/7 अवेलेबल करवानी है. और इसके लिए our method to achieve that agenda is going to be the solar energy initiative, जिसमें कि इंडिया ने अपने लिए टारगेट सेट करे थे, which is about 175 gigawatt production of solar energy. एंड इसी के अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी किया था इंडिया ने. इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच इज़ विथ फ्रांस, एंड इसका हेडक्वार्टर्स आई थिंक इज सिचुएटेड इन गुड़गांव. So moving on, there is this particular news article which I want to discuss about. So Green Index to rate the development. So this is basically an initiative of the Karnataka government, wherein the government announced that in future, whenever it is going to approve the developmental projects amongst the 20 or more industries, there are certain industries which have been specified. Whenever the government is going to approve those projects have to meet the requirement of Green Index. That is, the project has to analyze what is going to be the impact of that particular activity on the environment and what are the measures the companies are going to undertake so not to minimize those environmental impact. So this is Green Index, which is introduced by Karnataka government to promote the projects which are environmentally friendly in the future. So moving on, so what is ग्रीन इंडेक्स? अब ग्रीन इंडेक्स मार्केट के टर्म्स में हम समझते हैं. स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता होगा इंडेक्स होता है, इंडेक्स ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ होता है. इंडेक्स में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं. तो ग्रीन इंडेक्स क्या है? ऐसा इंडेक्स है जो कि इको फ्रेंडली स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट अलाउज इन्वेस्टर्स टू ट्रैक द कार्बन एफिशिएंसी ऑफ द कंपनीज ड्यूरिंग बिजनेस इन एमर्जिंग इकोनॉमीज़. सो कंपनीज़ की जो कार्बन एफिशिएंसीज़ हैं उसका एक रिकॉर्ड इन्वेस्टर देख सकता है. उससे होगा क्या, इन्वेस्टर जो कि आज के टाइम पे बहुत अवेयर है एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसको पता है कि उसकी एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. इन्वायरमेंट सेंसिटिव बनते जा रहे हैं लोग. उसी को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि कंपनीज की कार्बन एफिशिएंसी को भी लिस्ट डाउन करा जाता है. एंड द इन्वेस्टर्स हु आर सेंसिटिव टुवर्ड्स सच इश्यूज कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट इन सच अ कंपनी विच इज़
environment sensitive or is good in terms of that. So that is why this index is there. अब उसी तरीके से NSE का सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज इनिशिएटिव भी है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं. देन व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स. ग्रीन बॉन्ड्स ऐसी, आप पहले समझिए बॉन्ड्स क्या होते हैं. बॉन्ड्स होते हैं, सी कंपनी के पास पैसा रेज करने का दो मेजर तरीके होते हैं, विच इज़ इक्विटी एंड बॉन्ड्स. इक्विटी क्या होता है, जब ओनरशिप कैपिटल होता है, जब ये कंपनी इशू करती है सो दैट यू परचेज द शेयर एंड यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. यानी कि शेयर को देकर पैसा रेज करना इज इक्विटी. एंड वेयर एज वी टॉक अबाउट डेट, डेट इज़ काइंड ऑफ लोन जो कि कंपनी रेज करती है, और उसका क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, बॉन्ड्स. बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, एक अगर आपने बॉन्ड खरीदा है किसी कंपनी का, इसका मतलब क्या है, आपने एक सर्टिफिकेट ऑन किया है कि कंपनी फ्यूचर में लायबल है आपको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करने के लिए. इक्विटी शेयर में कंपनी आपको क्या देती है, डिविडेंड देती है, हिस्सेदारी देती है आपको कंपनी की. वेराज इफ़ वी टॉक अबाउट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में कंपनी आपको क्या देती है, इंटरेस्ट अमाउंट देती है ऑन द लोन दैट यू हैव गिवन टू द कंपनी वाया द बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट. सो उसी बॉन्ड को ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, ग्रीन बॉन्ड्स और नॉर्मल बॉन्ड्स में बस इतना ही डिफरेंस है. 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी. सो ग्रीन बॉन्ड्स एंड नॉर्मल बॉन्ड में बस इतना ही डिफरेंस है, दैट ग्रीन बॉन्ड ऑफरिंग्स आर ईयर मार्क्ड फॉर यूज टूवर्ड्स फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स. यानी कि जो ग्रीन बॉन्ड से जो भी पैसा रेज करेगी कंपनी, दैट इज़ गोइंग टू बी स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टूवर्ड्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स. दैट इज़ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए वो पैसा ईयर मार्क हो जाता है, स्पेसिफिकली उसी में ही जाएगा, किसी और एक्टिविटी में वो पैसा नहीं जा सकता है, किसी और ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं जाएगा जो कि उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से रिलेट नहीं करता है. ये ग्रीन बॉन्ड्स बेसिकली क्यों आया था, ग्रीन बॉन्ड्स इसलिए आया था कि गवर्नमेंट ने अपने कुछ गोल्स सेट करे थे, जो कि मैंने आपको बताया था, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट करे थे, जिसमें कि गवर्नमेंट का टारगेट है, वी वांट टू प्रोड्यूस थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी, वी वांट टू प्रोड्यूस अराउंड 175 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो मूविंग ऑन, देन BSE हैज़ ऑल्सो, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि NSE का सस्टेनेबिलिटी स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरीके से BSE ने अपना लॉन्च किया था एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ग्रीन बॉन्ड्स. एक्सक्लूसिवली जहाँ पे सिर्फ ग्रीन बॉन्ड्स सेल होते हैं, परचेज होते हैं, वैसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था. किसने, BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने. और अदानी ग्रुप वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने पैसा रेज किया था ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स. और अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर इसमें ग्रीन बॉन्ड्स में, इसमें जो एग्जांपल है मिस हो गया, ग्रीन बॉन्ड्स, येस बैंक वाज द फर्स्ट वन जिसने ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू बहुत सारा पैसा रेज किया था अराउंड 2015 के टाइम पे. एंड यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ, अदानी ग्रुप ने जो पैसा रेज किया है, इट इज़ थ्रू द एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विच हैज़ बीन डेडिकेटेड फॉर ग्रीन बॉन्ड्स बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इस पे ग्रीन बॉन्ड्स ने, अदानी ग्रुप ने ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज किया था. एंड नाउ व्हाट इज ESG रिपोर्टिंग. ESG is basically about environment, social and governance aspect. So it basically talks about, क्योंकि आपको पता होगा कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं कंपनी को, शेयर होल्डर्स को. उसी तरीके से वन सच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी इज़ टू डिस्क्लोज द एनवायरमेंटल एंड गवर्नमेंट एंड द गवर्नेंस गोल दैट हैव बीन अचीव्ड बाय द कंपनी. किस तरीके से गवर्नेंस कंप्लायंस कर रही है कंपनी, किस तरीके से अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रही है, किस तरीके से अपने एनवायरमेंटल गोल्स को अचीव कर रही है. उसमें वो ये भी डिस्क्लोज़ करता है कि उसने जितने भी प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करे हैं पास्ट में या फिर फ्यूचर में जो अंडरटेक करने वाला है, उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट फैक्टर क्या होने वाला है, एंड व्हाट आर द मेजर्स द कंपनी इज़ गोइंग टू अंडरटेक टू रिड्यूस दैट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, और if the company is taking any other compensatory environmental project. सो प्रॉब्लम क्या है इस ESG रिपोर्टिंग. ठीक है, सेबी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया था कि कंपनी को बोला था कि आप ESG रिपोर्टिंग भी करिए अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर, बट
द पॉइंट इज़ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जानते हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली जब 2% ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स का नेट प्रॉफिट का 2% कंपनीज को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स। अब पॉइंट ये है कि इट इज़ मैंडेटरी, कंपनी को ये मैंडेटरी है टू रिपोर्ट in the financial reports that how much have they contributed towards CSR goals, but it is not mandatory for ESG. ESG is completely voluntary in nature, which leaves investors and industries at disadvantage when analyzing द सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। कोई कंपनी करे या ना करे, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू देम। और जब वो नहीं अगर रिपोर्ट कर रही है इस बारे में, तो इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री अपने डिसीजन को अच्छे से नहीं ले पाते हैं कि वेदर जो प्रोजेक्ट कंपनी अंडरटेक करने वाली है वो फ्यूचर में सस्टेनेबल रहेगा या नहीं रहेगा। मूविंग ऑन, ये एक लेटेस्ट आर्टिकल है जिसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ये ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नोटिफिकेशन आया था। ये क्या है, पहले इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। बैकग्राउंड ये है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाज देयर इन 2006, वाज इंट्रोड्यूस इन 2006, जिसमें बोला गया था बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव होएगा, उस प्रोजेक्ट का क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करा जाएगा, क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए, इन्वायरमेंटली क्या क्या इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे उस रिलेटेड कंपनी को, एंड लॉट ऑफ मेजर्स वर बेसिकली स्पेसिफाइड इन दैट। अब क्या हो रहा है, अब व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनारियो इन दिस ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन, जो कि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली पब्लिश किया है और उस पर पब्लिक का रिकमेंडेशन भी मांगा है। उसमें बेसिकली कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को। ये जो ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन है, इसके बारे में अगर एक सिंपल 1 सेंटेंस में समझा जाए तो गवर्नमेंट की इंटेंशन है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रमोट करना। अब वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को प्रमोट करने के चक्कर में वो क्या कर रही है, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूव कर रही है जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं इंश्योर करेंगे, एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे। तो ऐसी कुछ बातें हैं इस EIA नोटिफिकेशन में, एंड पब्लिक की रिकमेंडेशन भी मांगी गई है। तो आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी अपना रिकमेंडेशन फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। सो बेसिकली EIA आया क्यों था 2006 में? इट वाज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले, अंडरटेक करने से पहले आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि आप इन्वायरमेंट पे कितना उसका बुरा असर डाल रहे हैं, और अगर नहीं डाल रहे हैं ओनली देन योर प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी फर्दर अप्रूव्ड एंड लेस स्क्रूटनाइज्ड। तो जब से ये रेगुलेशन आया था, इट वाज सीन एज अ ब्लॉक बाय द बिजनेस पीपल। वाई? बिकॉज फिर बिजनेस के ऊपर एक एडिशनल कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, प्लस इन्वायरमेंट को जब हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के इम्पैक्ट को कंट्रोल करना पड़ता है तो उसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट भी जुड़ जाती है, तो दैट इज़ एक्सपेंसिव फॉर द कंपनीज। So often it was seen as a blockage by the business people. Now issues, what are the basic issues with the draft that are there? So issues with the draft that are there is ex post facto clearance and violation fines. अब क्या बोला जा रहा है ex post facto clearance? मतलब अगर आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक कर भी लिया है, आपने या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं भी करा है, तो कोई बात नहीं, आप प्रोजेक्ट कंटिन्यू करिए और उसके साथ आप बस वायलेशन की फ़ाइन भर दीजिएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि इट इज़ अ ट्रेड ऑफ डिसीजन बिटवीन इन्वायरमेंट को डैमेज करने का, वायलेशन की फ़ीस वर्सेस गवर्नमेंट का कंप्लायंस। तो जो बिज़नेस है वो देखेगा कि कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा महंगी पड़ रही है मुझे, या फिर वायलेशन की फ़ीस भर के वो मैं सस्ते में निपट जाऊँगा। एक तरीके से वो बात हो गई। एंड उसी तरीके से सेकंड पॉइंट जो है, शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन फॉर हियरिंग। पहले क्या होता था, जो टाइम ड्यूरेशन था वो ज़्यादा था कंपैरेटिवली। जब भी कोई प्रोजेक्ट अप्रूव, बहुत लार्ज स्केल का कोई प्रोजेक्ट है जो अंडरटेक होने वाला है, तो पब्लिक का रिव्यू भी मांगा जाता था, उसमें पब्लिक का फीडबैक भी मांगा जाता था, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी रिड्यूस कर दिया गया है।
सिमिलरली वी टॉक अबाउट मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कि जब भी प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो उसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट चेक करने के लिए अराउंड 1 ईयर का टाइम पीरियड स्पेसिफाई था इन EIA एक्ट 2006। अब जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है उसमें प्रपोज किया जा रहा है उसको रिड्यूस कर देना चाहिए टू 6 मंथ्स, विच इज़ ऑब्वियसली अनफेयर एंड इज़ अनडेमोक्रेटिक इन नेचर। जो पार्टीज जो अफेक्ट होंगे उस प्रोजेक्ट से, जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा, ट्राइबल एरियाज में स्पेसिफिकली, दिस इज़ वेरी undemocratic in nature and people should oppose this. Then we talk about certain exemption from full scrutiny. There are certain sectors which have been exempted completely from full scrutiny requirement of EIA. For example, defense. Okay, defense sector को exempt करना is understandable because defense में investment is must and we cannot really do much about the environmental aspect of it. बट देर आर अदर सेक्टर्स एज वेल जहाँ पे स्क्रूटनी रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस कर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन सेक्टर. So this is something which is in news and which I think you all should keep a track of and which you all should be aware of. So if you've liked the video, if you've understood the content, please like our channel, please like the video and do share the video. Thank you so much. Keep learning, keep watching and stay healthy all of you. Bye bye.